أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. صدق اللہ العظیم. اگلی مجلس کے اندر میں یہ بتلایا تھا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے یہ جو اخیری جو رکوع یا آیت باقی ہے اس کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کو ذکر فرمایا: رسالت کو، توحید کو اور آخرت کو. رسالت کی بات کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وإنک لمن المرسلین، اور تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ بیان فرمایا تھا. اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا ذکر فرمایا. توحید کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات کے اندر میں ایک ماننا، اس کے ساتھ میں اس کی ذات اور صفات کے اندر میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. سیدھے سادھے الفاظ کے اندر میں یوں کہیں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی سے ہوتا ہے. نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اللہ اگر چاہے نفع پہنچانا تو پوری دنیا مل کر کے نفع اور پوری دنیا مل کر کے نقصان نہیں پہنچا سکتی. اللہ نقصان پہنچانا چاہے تو پوری دنیا مل کر کے بھی نفع نہیں پہنچا سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبضے قدرت کے اندر میں ہے. جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی ملکت ہے. جو کچھ دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم، ان چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دے رکھی ہے، من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ ایسا دن آوے کہ لا بیع فیہ، جس کے اندر میں نہ خرید و فروخت ہو، ولا خلت، اور نہ اس دن کے اندر میں دوستی کام آئے، ولا شفاعت، اور نہ اس دن کے اندر میں کسی سفارش کرنے والے کی سفارش کام آئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی تم کو دیا ہوا ہے یہ ہم نے دیا ہے. مما رزقناکم، آدمی مالک نہیں. اگر آدمی مالک ہوتا تو وفات کے بعد اپنے ساتھ میں لے جاتا. دنیا کے اندر میں جو بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں دنیا کے اندر میں، 2 مسلمان اور 2 کافر، کہ ساری دنیا کے اوپر میں ان کی حکومت تھی، لیکن وہ بھی اپنے ساتھ میں کچھ لے کر کے نہیں گئے. سکندر ذوالقرنین کے بارے میں ہے کہ ساری دنیا کے اوپر میں اس کی حکومت تھی، لیکن اس نے وصیت کی تھی کہ جنازے کے اندر سے، کفن کے اندر میں سے دونوں ہاتھ میرے یہ باہر رکھے جائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اتنی پوری دنیا کا مالک بھی خالی ہاتھ جا رہا ہے. تو تیاری کرنا ہے اس دن کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، خرچ کرو
मिम्मा रज़क़नाकुम, हमने दिया है, हमारे रास्ते के अंदर में खर्च करना है। अब उससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने जान और माल की कुर्बानी का हुक्म दिया था। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने माल की कुर्बानी का हुक्म दिया। इबादत के अंदर में कुछ इबादत जानी इबादत है, जैसे कि नमाज और रोज़ा, ये जानी इबादत है। ज़कात ये माली इबादत है, और हज ये जानी और माली दोनों मुश्तरक इबादत है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हमारे हुक्म के मुताबिक खर्च करो। अभी अगर खर्च कर लेंगे तो वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह, जो कुछ भी तुम आगे भेज दोगे ये अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ तुमको काम लगेगा। लेकिन उस दिन खरीदो फरोख्त भी काम नहीं लगेगी। कोई इंसान अपने आप को अल्लाह के अज़ाब से बचाने के लिए पूरी जायदाद और मिल्कत दे दे, लेकिन वहाँ पर कोई खरीदो फरोख्त नहीं होगी। और दुनिया के अंदर में कभी दोस्त का काम लग जाता है तो वहाँ पर कोई दोस्ती भी काम नहीं लगेगी। या अगर माल और सामान नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, तो कोई सिफारिश करने वाला अगर सिफारिश कर दे तो उसकी वजह से भी उसके काम बन जाते हैं। ये तीन शक्लें हैं इंसान के काम के बनने की। तिजारत की लाइन से बने, दोस्ती की लाइन से बने, सिफारिश और शफाअत की लाइन से बने। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उस दिन ये तीनों चीज़ें काम नहीं लगेगी, इसलिए खर्च करो। वल काफिरून हुमुज़ ज़ालिमून, और जो इनकार करने वाले हैं वही अपने आप पर जुल्म करने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के ऊपर में जुल्म नहीं करता है। जुल्म कहते हैं वज़उस सैफ़ फ़ी ग़ैरि महल्ली, किसी चीज़ को उसकी जगह के ऊपर में न रखना और दूसरी जगह के अंदर में उसको रखना। माल और जान अल्लाह के रास्ते के अंदर में खर्च करने की चीज़ थी और इसके अंदर में खर्च नहीं की, दुनिया के अंदर में उसने खर्च कर दी, तो ये जुल्म हुआ। और वल काफिरून हुमुज़ ज़ालिमून, अल्लाह के अहकाम को हुक्म की नाफरमानी करने वाले भी वो जुल्म करने वाले हैं। इसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने तौहीद का बयान फरमाया, अपनी सिफात को अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अल्लाह, ये इसमें ज़ाती नाम है, इसमें ज़ात, बाकी इसके अलावा रहमान है, रहीम है, कदीर है, समी है, अलीम है, जितने भी हैं ये सिफाती नाम है। इसीलिए ज़ाती नाम से पहले अब्दुन और सिफाती नाम से पहले अब्दुन कह करके हम अपने बच्चों के नाम रखते हैं। अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहीम। ये अब्दुन का माना है बंदा, अल्लाह का माना अल्लाह, और उसके बाद में जो उसकी सिफात आती है उसके साथ में हम जोड़ देते हैं, अल्लाह का बंदा, रहमान का बंदा, रहीम का बंदा। तो ये अल्लाह का ज़ाती नाम है। और बाकी जितने भी नाम है 99, ये अल्लाह तबारक व तआला की सिफाती नाम है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। अल हई, अब ये अल्लाह तबारक व तआला की अल्लाह ताला ने खुद सिफत बयान फरमाई, ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह की ज़ात ऐसी है कि उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला की पहली सिफत हुई। फिर अल हई, अल हई का माना वो जिंदा है, हमेशा से है और हमेशा तक रहेगा, अज़ल से है और अबद तक रहेगा। अज़ल ज़माने माजी के अंदर में उस ज़माने को कहते हैं जिसकी कोई इब्तिदा नहीं, और अबद ज़माने मुस्तक़बिल के अंदर में, आने वाले ज़माने के अंदर में उस ज़माने को कहते हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, जिसकी कोई इब्तिदा नहीं और जिसकी कोई इंतहा नहीं, ऐसी ज़ात है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात। हदीस शरीफ के अंदर में आता है कि तफक्करू फी खल्क़िल्लाह वला तफक्करू फिल्लाह, अल्लाह ताला की मखलूक के अंदर में गौर फिक्र करो, अल्लाह की ज़ात के अंदर में गौर फिक्र मत करो। इसलिए अगर आदमी अल्लाह ताला की ज़ात के अंदर में गौर फिक्र करेगा तो शैतान आकर के वसवसा डालेगा कि अच्छा ठीक है, फलानी चीज़ को अल्लाह ने बनाया, आसमान अल्लाह ने बनाया, ज़मीन अल्लाह ने बनाई, ये सारी कायनात अल्लाह ने बनाई, तो फिर शैतान आकर के कहता है कि फिर अल्लाह को किसने बनाया। हदीस शरीफ के अंदर में आता है कि ऐसा जब वसवसा पैदा हो तो आदमी जो है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ ले और सोचना बंद कर दे।
تو الحی حی ہمیشہ زندہ رہنے والا، یہ دوسری صفت ہوئی۔ القیوم نظام کو تھامنے والا، نظام کو برقرار رکھنے والا، دنیا اور آسمانوں اور زمینوں کا جو نظام ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھاما ہوا ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے غافل نہیں، اس لیے اگر کوئی ڈرائیور ہے گاڑی چلانے والا، اگر 2 یا 5 سیکنڈ کے لیے اگر اس کے اوپر میں غفلت طاری ہو جائے گی تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گی، ایک سیکنڈ کی غفلت طاری ہو جائے گی تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گی۔ یہ سارا جو نظام چلتا ہے ایک ترتیب کے مطابق نظام چلتا ہے، رات کے وقت میں رات کا آنا، دن کے وقت میں دن کا آنا، سورج کے نکلنے کے وقت میں سورج کا نکلنا، پھر غروب ہو جانا، بارش، ٹھنڈی، گرمی، یہ سارا جو نظام ہے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ غافل ہو جائے نعوذ باللہ تو یہ سارا نظام جو ہے گڑبڑ مچ جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کائنات کو، زمین و آسمان کو ایسے تھامے ہوئے ہیں کہ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم۔ سینۃ چونکے کو کہتے ہیں، آدمی سوتا نہیں، جب گنگی آتی ہے تو اس طریقے سے تھوڑا سا 1-2 سیکنڈ کے لیے جھونکا مار لیتا ہے، اس کو سینۃ کہتے ہیں۔ اور نوم سونے کو کہتے ہیں، سونا یعنی نوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی قائم رکھنے والی ہے کہ نہ تو اس کو جھونکا آتا ہے اور نہ اس کو نیند آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اسی کے تابع ہے وہ ساری چیزیں جو آسمانوں کے اندر میں ہیں، اور اسی کے تابع ہے وہ ساری چیزیں کہ جو زمینوں کے اندر میں۔ دوسری جگہ کے اندر میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی جھڑ سکتا نہیں۔ ما یسقط من ورقۃ الا باذن اللہ، قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی جھڑتا نہیں۔ تو جو کچھ بھی ہے یہ آسمانوں کے اندر میں، زمینوں کے اندر میں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات ہے۔ دنیا کے اندر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے ماتحت ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سے پہلے جو ہے آدمی خرچ کرے اور آخرت کے لیے تیاری کرے، ورنہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر میں اور قیامت کے اندر میں کسی سفارش کرنے والے کی سفارش بھی اگر وہ چاہے گا تو سفارش کرنے والا سفارش کرے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو کوئی سفارش کرنے والا بھی اپنی طرف سے سفارش کر سکتا نہیں، سفارش کرنے والا بھی اللہ کے حکم سے کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی، کون ہے یہ الذی یشفع عندہ، جو اللہ تعالیٰ کی یہاں سفارش کرے، شفاعت کرے، الا باذنہ، مگر اس کے حکم سے۔ حدیث شریف کے اندر میں بھی آتا ہے کہ ایک حافظ قرآن اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے گا کہ وہ اپنے خاندان کے ایسے 10 آدمیوں کے لیے سفارش کرے کہ جن کے اوپر میں جہنم واجب ہو گئی تھی، جہنم کا جن کے لیے فیصلہ ہو چکا تھا، ایسے 10 آدمیوں کے لیے اگر حافظ قرآن سفارش اور شفاعت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جس کے اندر میں شفاعت کی باتیں آتی ہیں، لیکن یہ سفارش کرنے والے اور شفاعت کرنے والے الا باذنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ہی سے وہ سفارش کریں گے۔ اللہ چاہے گا تو حافظ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سفارش کرنے کے لیے حکم دے گا، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہو۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کو جانتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم، جو لوگوں کے سامنے ہیں، وما خلفہم، اور جو لوگوں کے پیچھے ہیں، یعنی ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کا علم کے اعتبار سے احاطہ کر رکھا ہے، کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کالی رات کے اندر میں
काली चोटी तहतुस्सरा के पास, यानी तहतुस्सरा उसके भी नीचे काली चट्टान पर काली चोटी चलती है तो उसकी चलने की आहट और उसकी आवाज को भी अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श के ऊपर में सुनते हैं, और उसके चलने को भी अल्लाह तबारक व तआला देखते हैं, और उस चोटी को भी अल्लाह तबारक व तआला देखते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत। वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ। लोग और मखलूक अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में से किसी भी चीज़ के इल्म का इहाता नहीं कर सकती, इल्ला बिमा शाअ, मगर जितना कि अल्लाह तबारक व तआला तौफीक देवे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और खिजर के किस्से के अंदर में आता है कि कश्ती के अंदर में सवार हुए दोनों, बीच के अंदर में कोई कश्ती के ऊपर में कोई चिड़िया आई, और चिड़िया आई और कश्ती के किनारे के ऊपर में बैठी, और समंदर के अंदर में से अपनी चोंच के अंदर में से पानी भरा और फिर उसके बाद में उड़ गई। तो खिजर अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, इसने क्या कहा, तुमको मालूम है ये क्या कह करके गई? तो चूंकि वो तकवीनियात का जो इल्म था वो हजरत खिजर को था, और तशरीइयात शरीयत का जो इल्म था वो हजरत मूसा को था। तो हजरत मूसा ने इनकार किया कि मुझे नहीं मालूम। तो हजरत खिजर ने फरमाया कि ये आकर के एक पानी के अंदर में से, समंदर में से एक पानी का कतरा अपनी चोंच के अंदर उसने भरा, तो ये पानी का जो कतरा है ये हमारा इल्म है, सारे इंसानों का इल्म इसकी हैसियत पानी के कतरे जैसी है, और अल्लाह तबारक व तआला का जो इल्म है ये समंदर के पानी की तरह। ये बतला करके गई कि तुम्हारा इल्म अल्लाह तबारक व तआला के इल्म के मुकाबले में ऐसा है जैसा कि समंदर के मुकाबले के अंदर में पानी का कतरा। वसिया कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द, उसकी कुर्सी ने आसमानों और ज़मीनों को समो लिया है, उसकी कुर्सी आसमानों और ज़मीनों को घेर चुकी है। आसमान और ज़मीनों के ऊपर में जो है अल्लाह तबारक व तआला की कुर्सी है, और कुर्सी के ऊपर में अर्श इलाही है। अल्लाह तबारक व तआला ही इनकी कैफियत को जानता है, इसकी कुर्सी कैसी और इसका अर्श कैसा, और आसमान और ज़मीनों को घेर लेना कैसा अल्लाह ताला ही जानता है। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, आसमानों और ज़मीनों को जब से अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमा रखा है वहाँ से उसके निज़ाम को अल्लाह तबारक व तआला थामे हुए हैं। कोई भी चीज़ है, अगर हम और आप कोई चीज़ उठावें तो हम थक जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये आसमान और ज़मीनों का निज़ाम जो अल्लाह तबारक व तआला ने थामा हुआ है, अल्लाह तबारक व तआला ने उठाया हुआ है, तो ये अल्लाह को थकाते नहीं। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, आसमानों और ज़मीनों का निज़ाम और उसको थामना, ये इसकी वजह से अल्लाह ताला थकता नहीं है। वहुवल अली अल अज़ीम, अल्लाह तबारक व तआला ही बड़ा बुलंद और बड़ा है। ये अल्लाह तबारक व तआला की सिफात है। नसाई शरीफ के अंदर में रिवायत आती है, इसको आयतुल कुर्सी कहते हैं। कुर्सी का लफ्ज़ आया ना इसमें, वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द, इसकी वजह से इस आयत को आयतुल कुर्सी कहते हैं। नसाई शरीफ के अंदर में रिवायत है कि अगर आदमी सोने के वक्त के अंदर में आयतुल कुर्सी पढ़ करके सो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सुबह तक हिफाजत हो जाती है, और सुबह में अगर पढ़े तो शाम तक हिफाजत हो जाती है, और ज़ाहिरी और दूसरी चीज़ों से भी हिफाजत हो जाती है। इसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला अपनी सिफात को ज़िक्र करने के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस ज़ात को मानना चाहिए, इस पर ईमान लाना चाहिए, किसी और गैरुल्लाह को मानना नहीं चाहिए, और ईमान जो है इसी के ऊपर में लाना चाहिए। आदमी सोचे, गौर व फिक्र करे, तफक्कुरु फी खल्क़िल्लाह, अल्लाह की मखलूक के अंदर में गौर व फिक्र करे और आदमी ईमान लाए। ईमान लाने के अंदर में ज़बरदस्ती नहीं, ला इकराह फिद्दीन, दीन के अंदर में कोई ज़बरदस्ती नहीं। मक्का मुकर्रमा में 13 साल मेहनत हुई, और मदीना मुनव्वरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फतेह मक्का के वक्त के अंदर में आए, उस वक्त के अंदर में मेहनत हुई, तो वहाँ कौन सी ज़बरदस्ती थी?
सहाबा किराम के लिए या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ज़बरदस्ती की गई हो। ला इकराह फिद्दीन, दीन के अंदर में ज़बरदस्ती नहीं है। क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय, हिदायत का रास्ता और गुमराही का रास्ता ये ज़ाहिर हो चुका है, वाज़ेह हो चुका है। अब फमन यकफुर बित्तागूत, जो सर्कस और शैतान का इनकार करे, वयुमिन बिल्लाहि, और अल्लाह पर ईमान लाए, तो यूँ समझो कि फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा, इसने मजबूत कड़े को पकड़ लिया। लन फिसाम लहा, वो उससे जुदा होने वाला नहीं है। वल्लाहु समीउन अलीमुन, अल्लाह तबारक व तआला बड़ा सुनने वाला और बड़ा जानने वाला है। फिर उसके बाद में अल्लाह ताला ने अपनी सिफत बयान की, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु, अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों का दोस्त है। वली का माना दोस्त, एक है विलायत आम्मा और एक है विलायत खासा। जो भी ईमान वाला है ये अल्लाह का वली है। हम और आप जिसने भी अल्लाह का कलिमा पढ़ा है, अल्लाह के रसूल का कलमा पढ़ा हुआ है, ईमान लाए हुए हैं, ये सब के सब वली हैं। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमन, अल्लाह ताला वली है उन लोगों का जो लोग ईमान लाए, ईमान वालों का वली है, दोस्त है। ये है विलायत आम्मा। और फिर तकवा, तहारत, परहेज़गारी और मुजाहदात वगैरह की जो वजह से जो अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करता है, बड़ा बुलंद मर्तबा हासिल करता है, वो भी अल्लाह का वली होता है। ये है विलायत खासा और ये है विलायत आम्मा। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु, अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, अल्लाह ताला उनको निकालता है जुल्मात से नूर की तरफ, अंधेरियों से रोशनी की तरफ, कुफ्र से ईमान की तरफ, शिर्क से सुन्नत की तरफ अल्लाह तबारक व तआला निकालता है। वल्लज़ीना कफरू, और जिन लोगों ने ईमान को कबूल नहीं किया, औलियाउहुम, उनके दोस्त अत्तागूत, सर्कस हैं, शैतान हैं, गुमराही का रास्ता बतलाने वाले, ये उनके दोस्त हैं। उनका क्या काम है? युखरिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़-ज़ुलुमात, उनका काम उल्टा, अल्लाह का काम अंधेरियों से नूर की तरफ निकालना, कुफ्र से ईमान की तरफ निकालना। और इन शैतानों का काम क्या है? युखरिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़-ज़ुलुमात, कि अल्लाह ये वो लोग उनको रोशनी से अंधेरियों की तरफ निकालते हैं, ईमान से कुफ्र की तरफ निकालते हैं, तौहीद से शिर्क की तरफ निकालते हैं। उलाइका अस्हाबुन नार, यही लोग जहन्नम वाले हैं। हुम फीहा खालिदून, और वो उसके अंदर में हमेशा हमेशा तक रहेंगे। इसके बाद में आगे अल्लाह तबारक व तआला ने जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुनाजरा जो नमरूद के साथ में हुआ था, जिसके अंदर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको तौहीद की दावत दी थी, इसका जिक्र आगे आइंदा